स्तुष्टो वाग्ंसस्तानो विरव्याशे मोहिदे वहिताञ्जदायुः। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू ऑल। आज के इस अवसर पर मैं विदेश मंत्री माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी का परिचय संक्षेप में प्रस्तुत करती हूँ। Dr. S. Jaishankar is India's External Affairs Minister since May 30th, 2019. He is a member of the upper house of India's Parliament from the state of Gujarat. He was Foreign Secretary from 2015 to 18, Ambassador to United States, China, Singapore, and Czech Republic. He has also served in other diplomatic assignments in embassies in Moscow, Colombo, Budapest, and Tokyo, as well in the Ministry of External Affairs and the President's Secretariat. He was also President, Global Corporate Affairs at Tata Sons Private Limited. Dr. S. Jaishankar is a graduate of St. Stephen's College at the University of Delhi. He has a Master's in Political Science and MPhil and PhD in International Relations from Jawaharlal Nehru University, Delhi. He is a recipient of the Padma Shri in 2019 and has written a widely acclaimed best-selling book, The India Way: Strategies for an Uncertain World, which was published in 2020, and Why Bharat Matters, which was published in 2024. Now I request Mr. Pradeep Peshkar to felicitate Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, please. आजच्या कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी विजयजी चौथाईवाले यांचा थोडक्यात परिचय. Dr. Vijay is in charge Foreign Affairs Department and a member the National Executive of Bharatiya Janata Party since November 2014. In this role, he is coordinating with the Indian diaspora worldwide. Additionally, he interacts with foreign embassies, overseas political parties, diplomats, and delegates from various countries to put forward a party perspective on issues of mutual interests. Before joining active politics, he worked in a senior management role in pharmaceutical research and development. Dr. Vijay completed his PhD from the University of Pune and postdoctoral fellowship at National Institute of Health, USA. He is co-editor of 3 books entitled Hindutva in Present Context in 2009, The Modi Doctrine, New Paradigms in India's Foreign Policy in 2016, and Modi, Shaping a Global Order in Flux in 2023. He has authored peer-reviewed scientific papers in international journals and is co-inventor of several global patents. He is a regular columnist in several national media publications. He is also on the board and executive committees of eminent institutes like IIM Raipur, CSIR, CDRI Lucknow, and Atal Innovation Mission. Born in Nagpur, he is a member of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh since his childhood. माननीय श्री विजयजी चौथाईवाले यांचं स्वागत श्रीयुत मकरंद वाघ, सेक्रेटरी श्वास फाउंडेशन यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. ऑनरेबल डॉक्टर विजयजी चौथाईवाले.
आजच्या कार्यक्रमाचे विशेष पाहुणे श्रीराम दांडेकर यांचा परिचय आपल्याला कॅमलिनच्या रूपात अगदी शाळेपासूनच आहे. श्रीराम दांडेकर इज व्हाईस चेअरमन अँड एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ऑफ कोक्युयो कॅमलिन लिमिटेड. अनेक संस्थांच्या कार्यकारी मंडळांवर त्यांनी सन्मानांची पदं भूषवलेली आहेत, जसं चेअरमन ऑफ बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स ऑफ IIM जम्मू, व्हाईस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर मुंबई, member on the advisory board of IES Management College and Research Center, Vice President मराठी व्यापारी व्यावसायिक and उद्योजक मंडळ मुंबई. माननीय श्रीराम दांडेकर यांचं स्वागत श्री श्रीधर व्यवहारे, नॅशनल फेलो NIPM, लीगल कन्सल्टंट, श्वास फाउंडेशन यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. माननीय श्रीराम दांडेकर. नाशिकच्या ओव्हरऑल विकासाबाबत कायमच तळमळीने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून वेळप्रसंगी राज्य किंवा केंद्रापर्यंत पाठपुरावा करून ठोस काम करणारा नेता म्हणून प्रदीपजींना आपण अनुभवलेलंच आहे. कोविड वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह असो, सर्वायकल कॅन्सरचा वॅक्सिनेशन डोस किंवा आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून कार्डाचं वितरण, अशा अनेक उपक्रमांमध्ये प्रदीपजींनी भरघोस अशी कामगिरी केलेली आहे. तळागाळातल्या समाजापासून ते धोरणी नेत्यांपर्यंत संपर्क ठेवून असलेल्या प्रदीपजींमुळेच आजच्या ह्या कार्यक्रमाचा लाभ आपण नाशिकमध्ये घेत आहोत आणि याही पुढे आणि याही आधी अशा अनेक दर्जेदार कार्यक्रमांचा लाभ आपण घेतलेला आहे. औद्योगिक तथा सामाजिक कार्य में सदैव अग्रणी रहने वाले, धोरणात्मक पॉलिसीज़ के माध्यम से लोगों की सेवा करने वाले एक कार्यक्षम नेता, यही पहचान प्रदीप जी ने अपने आज तक के कार्य से बनाई है. Now I request Pradeep ji Peshkar to give introduction of this program, please. मंच पर आसीन भारत सरकार के परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासक, लेखक, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विजय राव चौथाईवाले जी, हमारे दूसरे मार्गदर्शक जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में महाराष्ट्र का भी नाम और देश का भी नाम ऊंचा किया है, ऐसे कोकोयो कैमलिन लिमिटेड के वाइस चेयरमैन श्री श्रीराम जी दांडेकर, और सभागृह में उपस्थित एक नहीं तो 3 सभागृह और पार्किंग सभी में उपस्थित सभी नासिक के विद्वज्जन बंधु बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन. छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित तथा वीर सावरकर जी के शौर्य से पावन अपने भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी का मैं स्वागत करता हूं. भागवत कराड़ जी का नासिक पर विशेष प्रेम है और उसमें भी ज़्यादा मुझ पर भी प्रेम है. छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित तथा वीर सावरकर जी के शौर्य से पावन इस नासिक भूमि का देश के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है. कालाराम मंदिर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से पावन यह भूमि कुंभ मेले के माध्यम से पूरे विश्व को एकात्मता का संदेश देती है. आर्थिक क्षेत्र में भी नासिक का एग्रो इंडस्ट्री हो, ग्रेप्स हो, ओनियन हो, उत्पादों के माध्यम से देश के अग्रस्थान नाम लिया जाता है. डिफेंस के क्षेत्र में हो तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से नासिक ने देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है
और उसमें योगदान भी दिया है। सर, नासिक के पूरे भारत के जीडीपी में नासिक का 13वां स्थान है। तो इसमें बढ़त हो, इसलिए हमें जितना आशीर्वाद आप दे सकते हैं उतना हमें आज लेने के लिए आपको बुलाया है। उसके साथ विकसित नासिक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम आपसे कई उम्मीदें रखते हैं। आपके आने के अवसर पर हम सभी नासिक वासियों के तरफ से आपसे कुछ मांगने की चेष्टा भी करूंगा। नासिक का पोटेंशियल, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट का ध्यान रखते हुए भारत नासिक का एक महत्वपूर्ण फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। यह क्लाइमेट उसको सूटेबल करता है। उसी कड़ी में नासिक के साथ विकसित नासिक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम लोग डिफेंस इंडियनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और रक्षा मंत्री राजनाथ जी और तत्कालीन डिफेंस स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष भामरे जी के घोषणा किया हुआ डिफेंस इनोवेशन हब भी नासिक में काम शुरू कर दिया है। और डिफेंस इनोवेशन सेंटर का फाउंडर डायरेक्टर होने के नाते मैं भी उसमें योगदान दे पा रहा हूं, लेकिन आपसे मदद की काफ़ी उम्मीदें हैं। नासिक के कल्चर को देखते हुए इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी, मेडिकल टूरिज्म का वैश्विक केंद्र तथा कुंभ की नगरी होने के कारण प्रभु श्री राम जी सर्किट के अग्रस्थान में होने के नाते धार्मिक पर्यटन का भी बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। मोदी जी की कृपा दृष्टि और आपका नेतृत्व ये हमें मौका और बढ़ाने का देती है। नासिक के युवा, उद्यमी तथा महिला सभी क्षेत्र में अग्रसर है। वो देश के अंतर्राष्ट्रीय तथा फॉरेन पॉलिसी में भी रुचि रखती है। ये इसी का ही प्रमाण है सर कि इतनी संख्या में लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। सर, नासिक डिजर्व्स एन इंटेलेक्चुअल ट्रीट like this and we are honored that you are here. Lastly, गुड गवर्नेंस सेल का महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हुए मैं इस बात से अवगत हूं कि देश के विकास में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अनन्य साधारण महत्व है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व और आपकी कार्यकुशलता, कार्य तत्परता तथा राजनयिक अनुभव के प्रदीर्घ अनुभव से विश्व पटल पर भारत ने नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। Your proactive outreach towards Indian diaspora and public diplomacy with new vigor have instilled great enthusiasm among the youths. इसी कारण आज उपस्थित श्रोतागणों द्वारा 1500 से भी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। वो सवाल का कंपाइलेशन करना हमारे लिए एक 7 घंटे का काम रहा और वो 7 घंटे का कंपाइलेशन आपको 45 मिनट्स में विजय जी कंपाइल करके पूछने वाले हैं। आपके महत्वपूर्ण अनुभव के साथ विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपका विजन जानने हेतु हम सब उत्सुक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, सभी महानुभावों का स्वागत, विशेषतः भगवत कराड़ जी का भी स्वागत। धन्यवाद। बाहर डॉक्टर एस जयशंकर लिखित विश्वमित्र भारत और भारत मार्ग, ये दोनों पुस्तकें बाहर उपलब्ध है। जिन्हें इन पुस्तकों का लाभ लेना है तो आप स्टॉल पर से ले सकते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल डॉक्टर विजय जी चौथाईवाले टू टेक ओवर एंड अनफोल्ड द विश्व बंधु भारत थ्रू कॉन्वर्सेशन विथ ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्लीज। उससे पहले एक छोटी सी खबर। सर्वांना, विशेषतः पलाश आणि शर्मन हॉलमध्ये आणि खाली पार्किंगमध्ये असलेल्या सर्व उपस्थितांसाठी एक चांगली बातमी आहे की इथला जेव्हा मुलाखतीचा कार्यक्रम संपेल त्यानंतर 1 मिनिटासाठी आपल्याला भेटण्यासाठी स्वतः मंत्री महोदय वरच्या दोन्ही हॉलमध्ये येणार आहेत। धन्यवाद। नमस्कार। प्रभू रामचंद्राच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नाशिक शहरात आज इथे एवढ्या मोठ्या संख्येत आपण उपस्थित राहिले त्याबद्दल प्रथमतःच मी आयोजकांचं अभिनंदन करतो। डॉक्टर जयशंकर जी, आपकी नासिक की पहली विजिट है। एनी कमेंट अबाउट इट?
पहली विज़िट तो है, पर एक किस्म से एक पुराना नाता है कि आपके यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध डिफेंस की फैक्ट्री है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री है, और वो उस समय स्थापित हुई थी जब मेरे नाना जो थे वो HAL के चेयरमैन थे उस समय। तो और डिफेंस के क्षेत्र में मेरा पुराना माने हमारे फैमिली में, क्योंकि मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग सरकार में ही काम कर चुके हैं, तो मेरे पिताजी भी डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी थे, तो उनका भी काफ़ी आना जाना होता था। तो मैं कहूँगा ये तीसरी पीढ़ी का कोई आया है, थोड़ी विलम्ब हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर कम से कम मैं आपको आभार प्रकट करूँगा कि आप लोगों ने ये अवसर दिया मुझे, और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके। और जैसे ही आए तो कालराम मंदिर में प्रभु श्री राम का दर्शन भी हुआ, तो वो भी मैं बहुत अपना सौभाग्य मानता हूँ। तो अभी डायरेक्टली क्वेश्चन जाते हैं, और फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि मैं एक दो सवाल पूछूंगा। अभी मुझे माइक मिलाई है तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं पर उसके पश्चात श्री दांडेकर जी एक दो सवाल पूछेंगे, और फिर हम ये फोरम ओपन करेंगे। जैसा कहा 1500 सवाल आए हैं, उसमें से भी मैं कुछ पूछूंगा, और कुछ आप एक्सटेम्पोरो भी पूछ सकेंगे। आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है विश्व बंधु भारत, और हम विश्व बंधु भारत, उसके पहले हम विश्वमित्र भारत की भी बात करते थे। और लेकिन दुनिया में हम रोज़ सुबह टीवी न्यूज़पेपर देखते हैं तो सब जगह कॉन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का वातावरण दिखता है। तो ये एक डायकोटोमी लगती है कि इसमें आप विश्व बंधु भारत की कल्पना कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, जो विश्व बंधु भारत जो है, इसके दो पहल हैं। एक मैं कहूँगा कि हम जो हैं दुनिया के लिए हमारा नाता क्या है, हमारा योगदान क्या है दुनिया को हमारे बारे में, क्योंकि दुनिया की सोच जो है उस पर निर्भर है। तो वो मैं कहूँगा, अगर आपको कोई टर्म चाहिए तो ये वसुधैव कुटुंबकम बहुत जचता है, क्योंकि हम पूरे दुनिया को एक किस्म से एक परिवार मानते हैं। और हमारी ओर से, और मैं इसका उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली हकीकत में वसुधैव कुटुंबकम को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो दूसरा जो है कि हर देश का अपना हित होता है, अपनी सोच होती है, और दुनिया जैसे जो कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो स्पर्धा जो होती है, उसमें हर देश को अपने हितों को आगे रखना पड़ता है, और जहाँ जितना संभव है वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इक्वेशन के रूप में चाहते हैं तो मैं कहूँगा विश्व बंधु भारत इक्वल्स वसुधैव कुटुंबकम प्लस भारत फर्स्ट। तो ये मैं कहूँगा दिस वुड बी अ समरी। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण देना है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो जो हमने महामारी के समय में, कोविड के समय में, कि करीब 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाया, और उनमें से बहुत सारे देश थे जिनकी कभी अपेक्षा नहीं थी कि उनके यहाँ वैक्सीन कभी भी आएगी, या अगर आएगी तो इतना लेट आएगा, तब तक माने पूरा कोविड का जो नुकसान जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरा मैं कहूँगा आज की स्थिति में आप जानते हैं कि ये इज़राइल गाज़ा के कारण वो पूरे क्षेत्र में बहुत तनाव है, और उस तनाव में आज जो शिपिंग जो होती है, जो व्यापार, जो जहाज़ से जो शिपिंग जो हो रही है, उस पे आजकल अटैक्स हो रही हैं, कि वो ड्रोन से अटैक्स हो रही हैं, मिसाइल से अटैक्स हो रही हैं। और कुछ देश हैं, बहुत कम, जिन्होंने अपनी सेना, अपनी नौसेना भेजा है। आज भारतीय नौसेना के 21 जहाज जो हैं वो वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। अगर किसी जहाज़ पे कहीं आक्रमण हो जाता है, किसी का, वो पायरेट आकर समुद्र
जो डकैत होते हैं वो किसी का अपहरण करते हैं या कहीं आग लग जाती है, जैसे टैंकर में 1-2 बार लग चुकी हैं, तो मैं कहूँगा कि हम वहाँ अपना भी कर रहे हैं पर ज़रूर मानवता का वहाँ काम भी कर रहे हैं। तो ये एक किस्म से वसुधैव कुटुंबकम का के दो उदाहरण हैं कि भारत जो है दुनिया के लिए क्या करती। और जो हमारे जो भारत फर्स्ट का विषय जो है, इसमें क्या होता है कि क्योंकि जैसे आपने कहा दुनिया में युद्ध है, विवाद है, तनाव है, तो उस समय अलग अलग देशों पे, अलग विषयों पे दबाव आता है कि आप ये करिए या ये नहीं करिए। और 2 साल पहले जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो उस समय हम पे बहुत दबाव था पश्चिमी देशों से कि हम रूस से तेल न खरीदें। और जो मुझे जो निर्देश, प्रधानमंत्री का निर्देश ये था कि देखिए हमें जो है भारत के हित, इसलिए मैंने कहा भारत फर्स्ट, भारत के कंज्यूमर का हित, भारत की पब्लिक का हित, इसको सामने रख के आप अपना विदेश नीति चलाइए। तो मेरे मन में डायरेक्शन बहुत क्लियर था कि अगर हम उस टाइम दब जाते, झुक जाते, तो पूरे पब्लिक को, हम सबको, मैं कहूँगा कम से कम 15-20 रुपए ज़्यादा देने पड़ते पेट्रोल पंप पे हर लीटर के लिए। तो ये जो है अपने हित के लिए, और बहुत इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए जो कभी कभी पहले नहीं होती थी। या मैं दूसरा उदाहरण आपको दे सकता हूँ आतंकवाद के बारे में कि जब हमारे यहाँ हम जब आतंकवाद के शिकार पड़ते थे, और ये सालों से चल रहा है, दशकों से चल रहा है, उस समय दुनिया हमको कहती थी कि भाई आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि बहुत डेंजरस है, आप कुछ नहीं करिए, पड़ोसी ऐसे ही होते हैं। अब उनकी बारी आई जब, तो वो तो उस समय उनको कोई हिचकिचाहट नहीं था। तो ये जो बदला जो है कि आप देख रहे थे कि आप याद होगा सबको कि मुंबई में 2008 में जो 26/11 की जो अटैक जो हुई थी, उसके बाद हमारे ओर से कुछ नहीं हुआ। मैंने आलोचना की, पूरे दुनिया ने कहा कि नहीं हम बिल्कुल आपके साथ हैं, पर आप कुछ नहीं करिए। अब उसके बाद जब उरी पे उन्होंने अटैक किया या पुलवामा पे अटैक किया, तो उस समय आप वो परिवर्तन देख सकते हैं कि हमने कहा कि भाई दुनिया आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हमें निपटने दीजिए इसके साथ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है हमें ये बैलेंस रखना है कि अगर बिल्कुल ही स्वार्थी हो तो फिर दुनिया में हमारी जो ब्रांडिंग जो है, रेपुटेशन, वो खराब हो जाती है। लोग कहते हैं भाई ये इन्हीं अपने लिए है। तो हमें दुनिया के लिए भी करना चाहिए, पूरे विश्व। इसीलिए जो विश्व जो है, विश्व बंधु जो है, विश्व का बंधु भी है, पर अपना हित को भी कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो बैलेंस कैसे बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल है, आपकी जो किताबें, आप में से किसी ने भी वो किताबें नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि वो मराठी में अवेलेबल है दोनों किताबें, वो यहाँ ज़रूर पढ़िए। भारत मार्ग, और दूसरा जो अभी नया आया है व्हाई भारत मैटर्स, उसका नाम विश्वमित्र भारत ऐसा रखा है। तो इसमें भी कई सारे ऐसे उदाहरण आए कि अपनी जो एक सिविलाइजेशन है, हेरिटेज है, उसमें से भी कई सारे एग्जाम्पल्स आपने उसमें कोट किए हैं। तो भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ओनली based on the paradigm of Western paradigm or modern paradigm, but it has a cultural connection also. So would you like to elaborate on it? ये दो किताब जो मैंने लिखी है, एक जो पहला किताब जो था वो 2020 में प्रकाशित हुआ, दूसरा किताब हाल ही में 2024 में। और जो विजय जी जो कह रहे हैं, पहले किताब में मैंने जो महाभारत के परिप्रेक्ष्य से जो दुनिया में जो राजनीति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है उसकी मैंने एनालिसिस की। दूसरे किताब में मैंने रामायण की दृष्टि से की, और मैं इसका कारण बताता हूँ आपको। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस,
और जो हमें जो पढ़ाया जाता था, ये पढ़ाया जाता था कि अगर स्ट्रैटेजी, कूटनीति, रणनीति की बात करें तो जो मशहूर लोग जो हैं वो ज़्यादातर पश्चिमी दुनिया के लोग आते थे। कहीं कुछ भी उदाहरण हो, किसी का लेख हो, किसी का व्यवहार हो, आप किसी की अगर जिक्र भी कर रहे हैं तो कहीं जो किताबें जो थीं वो मैकियावेली का नाम लेते थे या आधुनिक दिनों में किसिंजर का नाम लेते थे, या अगर उन किताबों में भी अगर आप किसी का नाम वहाँ पढ़ते थे तो वो पश्चिमी, जैसे वो ग्रीक इलियड, ओडेसी, ऐसे रेफरेंसेस होते थे। तो मुझे लगा कि अगर आज भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम जो हैं 5000 साल की संस्कृति हैं, तो ये तो उचित होगा कि हम अपने इतिहास से, अपनी विरासत से ऐसे सिचुएशन या कहानियाँ या उदाहरण, एग्जाम्पल देखें जो हमारे लोगों को माने तुरंत उनके गले उतरेगा। अगर आप ऐसा रेफरेंस देंगे, जैसे जब मैं कहता हूँ, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स जो है कि उस समय वो ग्रीस की एक बहुत मशहूर कहानी है कि उनको एक शहर पे हमला करना था तो एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया और घोड़े के अंदर जो है सैनिक घुस गए और वहीं बैठे रहे। तो जो शहर जो है उन्होंने दरवाजे खोल के घोड़ा अंदर ले लिया और रात को वो सैनिक बाहर निकल के उन पे आक्रमण किया। अब ये ट्रोजन हॉर्स जैसा जो शब्द जो है सब लोग जानते, हम भी उसका प्रयोग करते। अब हम कभी अपना नहीं कहते। अगर मैं किसी को कहूँ लक्ष्मण रेखा, अब सब जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा क्या है, कि ये लाइन है तो इसको क्रॉसिंग करने में कोई डेंजर है या कोई बड़ा निर्णय है। तो मैंने सोचा कि अगर हम अपनी परिप्रेक्ष्य से, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के नज़रिए से अगर हम आज के पॉलिटिक्स को एनालाइज कर सकते हैं, तो जो इन किताबों में जो मैं दोनों का कहीं रेफरेंस कर देता हूँ। जैसे मैंने जो पहली किताब में शिशुपाल का वहाँ रेफरेंस किया है कि कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने शिशुपाल के माँ को ये आश्वासन दिया कि मैं जो है 100 बार उनको माफ़ करूँगा, पर जब उन्होंने अल्टीमेटली लिमिट क्रॉस किया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से जो करना था कर दिया। तो मैंने रेफरेंस किया कि आतंकवाद के बारे में भी हमने बहुत झेला। 1947 से आतंकवाद, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कोई नई बात नहीं है। ये शुरू हुआ था सितंबर 1947 में, जब कश्मीर में पहला हमला जो हुआ था वो पाकिस्तान के सैनिक नहीं आए थे। पहले उन्होंने जो है सिविलियंस को भेजा जो माने बिना वर्दी के थे, आधे उनमें से बहुत सैनिक भी थे। तो वो जो हैं उन्होंने बार बार ये आतंकवाद उनके मन में माने आतंकवाद की एक रणनीति है कि भारत पे दबाव डालते जाओ, कहीं ना कहीं जो है भारत नेगोशिएट करने के लिए आएगा और दबाव में आएगा। तो आखिर वो शिशुपाल का समय आ गया ना, उरी में, और फिर बालाकोट। तो और रामायण का जो है, रामायण का अगर आप देखेंगे, देखिए मैं डिप्लोमेट हूँ, अभी पॉलिटिक्स में हूँ। हम जो हैं पूरे डिप्लोमेट्स, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को तारीफ करते हैं। मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ, भाई सबसे बड़े डिप्लोमेट जो हैं कृष्ण भगवान और हनुमान जी। कि आप देखिए जो हनुमान जी जो हैं अब प्रभु श्री राम की ओर से गए, उनको एक मिशन दिया गया था। मिशन दिया गया था कि आप रावण के यहाँ जाइए और जो उनके यहाँ से जो कहना था आप जरूर बात उनके सामने रखें। पर देखिए कितने सफल, कितने माने काबिल थे वो कि वहाँ गए, उन्होंने पूरे रावण का जो पूरे परिवार का भी, कोर्ट का भी,
एक किस्म से जानकारी ली, असेसमेंट किया। उन्हीं के कारण जो है अंत में जब विभीषण रावण को छोड़ के प्रभु श्री राम के चरण में आए तो ये हनुमान जी का सलाह था कि इनको आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, या वहाँ गए। अब वो थोड़ा एक्स्ट्रा डिप्लोमेसी भी कर गए कि शहर भी जला दिया, हाँ, और माँ सीता के यहाँ भी पहुँच गए, उनको भी उनका मनोबल उन्होंने बढ़ाया। तो आप देखिए कि जब मैं कभी कभी अपने जो ट्रेनी जो हैं मैं उनको समझाता हूँ कि डिप्लोमेट जो है उसको एक मोटा मोटा एक लक्ष्य दिया जाता है कि आप देखिए आपको ये करना है, पर आपके यहाँ बहुत माने अपनी डिस्क्रिशन है, तो आप उससे अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, आप और भी क्रिएटिव हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों किताबों में मुझे लगा कि अगर हम अपने इतिहास और अपने परंपरा से अपने लोगों को डिप्लोमेसी पे ज़्यादा इंटरेस्ट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। धन्यवाद। मैं अभी दांडेकर जी को। धन्यवाद विजय जी। सर, मैं 2 सवाल पूछूंगा, बाकी विजय जी आगे लेके जाएंगे। आपने लक्ष्मण रेखा का उल्लेख किया, यहाँ पंचवटी है, वहाँ से ही सीताहरण हुआ, जहाँ लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी। सवाल ये ऐसा है कि भारत देश लक्ष्मण रेखा पार करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जब सम्मिलित कर लेगा, तब चाइना की आप क्या एनविसाज करते हैं कि चाइना का स्टैंड उस पर क्या होगा? स्पेशली आई जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर goes through via Gilgit Baltistan till Gwadar port, which goes to majoritarily from POK. ये सवाल है मेरा। देखिए, एक तो मैं नहीं मानता कि वहाँ लक्ष्मण रेखा है। तो मुझे लगता है कि पीओके जो है भारत का अंग है। कहीं एक समय में किसी के कमज़ोरी के कारण, किसी की गलती के कारण हमारे यहाँ से टेम्पररी निकल गया, टेम्पररी। तो आप यह भी जानते हैं कि इसमें एक संसद, ये संसद का, पूरे संसद का और माने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन है कि हम जो हैं कभी न कभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेंगे। ये पोजीशन। जो आपका सवाल जो है, मैं कुछ साल मैं चीन में भी राजदूत था, और करीब क्योंकि जो चीन का जो वहाँ जो भी उनकी गतिविधियाँ जो हैं, जो भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलजुल के जो किया है, इसका भी पुराना इतिहास है। तो हम उनको बार बार कहते थे कि देखिए, ये ज़मीन जो है, अगर आप दुनिया के थोड़ा लीगली देखें इसको, हाँ, पाकिस्तान भी नहीं कहता कि ये पाकिस्तान का भाग है, ना चाइना कहता कि चाइना का है। इसका अगर सॉवरेन क्लेमेंट है कहीं दुनिया में, एक ही भारत है। लीगली आप देखिए इसको, कि थोड़ा आप देखिए कि अगर किसी का यहाँ किसी के ज़मीन का विवाद हो, ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं, बिल्डिंग आप वहाँ बना रहे हैं, लीगल टाइटल मेरा है। अब देखिए ना, हाँ, तो उनको जो है, उनको पता है। और ये भी है कि आप कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग के लिए नई बात होगी, 1963 में उस समय पाकिस्तान, क्योंकि 62 में हमारा युद्ध हुआ था चाइना के साथ,
तो उसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने मन बना लिया कि वो अपनी दोस्ती जो है, अपने रिश्ते उसको आगे ले जाएंगे। और चाइना को साथ रखने के लिए 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को एक करीब 5000 किलोमीटर पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी जो है वो चाइना के हवाले कर दी। अब उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि eventually this territory China will respect whether it will be with India और पाकिस्तान। तो चाइना को खुद पता है कि उनकी लीगल केस जो है बहुत कमज़ोर, तो अल्टीमेटली जो है दुनिया हर समय कानून के मुताबिक नहीं चलती थी, अगर चलती है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कभी कभी जो है लोग कब्जा कर लेते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि अलग अलग घटनाएं होती हैं, कोई किसी जगह पे अपना कुछ स्थापित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो है एक तो हमारी पोजीशन हमें बहुत मजबूत रखनी होगी, हमें खुद उस पर विश्वास करना है। क्योंकि देखिए 10 साल पहले, अगर 10 साल पहले आप वहाँ होते और मैं आपके सामने आता, आप में से कोई भी पीओके की बात नहीं उठाता, कोई भी नहीं उठाता। ये बदला है क्योंकि 5 साल पहले हमने जो है 370 का विषय जो अंत में जो होना था वो हमने किया। तो भारत के पब्लिक को विश्वास है कि अगर हमने ऐसे सरकार को चुना है जिसमें यह हिम्मत है 370 करने की, उसको रद्द करने की, तो उस सरकार में ज़रूर हिम्मत होगी। कुछ अधूरा रह गया है तो आगे का मेरा सवाल ऐसा है, 30 मई 2019 में आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन गए। इस 30 मई 2024 में 5 साल हो जाएंगे और हम सबका विश्वास है नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो फिर से आप उस जिम्मेवारी, वो आपके कंधे पर वो जिम्मेवारी आ जाएगी और आप निभाएंगे। सवाल ऐसा है, चाहे इतने टेंशन्स वर्ल्ड ओवर है, हमास ने जो अटैक किया है, रशिया यूक्रेन इशू चालू है और भी काफ़ी इश्यूज बर्निंग है, तो भारत की पोजीशन, इक्विलिब्रियम रखने की पोजीशन की आपकी संकल्पना क्या है? बस इतना ही सवाल। देखिए, जैसे मैंने कहा, दुनिया में आजकल तनाव बहुत है और जब तनाव होता है तो दोनों साइड जो हैं उनकी पोजीशन बहुत कठोर हो जाती कि, और जब तनाव नहीं युद्ध होता तो और भी कठोर हो जाती। और हमारे हित जो हैं किसी एक देश या एक कोई गठन के साथ नहीं है। माने हमारे हित इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इतना फैल चुका है कि हमें रशिया के साथ भी चलाना है, पश्चिम देश अमेरिका यूरोप के साथ भी चलना है, हमें इज़राइल के साथ भी रिश्ते आगे बढ़ाने हैं, ईरान के साथ भी काम करना है। तो क्या होता है कि जो ऐसे देश होते हैं इनकी कूटनीति जो है बहुत मैं कहूँगा सोच विचार के साथ, बहुत संयम के साथ आगे बढ़ाना होगा। और हमें इसके लिए सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार हम कहीं झुक जाए, किसी के दबाव में आ जाए, फिर क्या होता है कि दुनिया को लगेगा कि नहीं, इनको बार बार दबाते जाओ और ये कहीं ना कहीं झुक ही जाएंगे। तो हमें जो है, ये मैं इन सब को एक किस्म से मैं टेस्ट मानता हूँ कि हर केस में हमें ठीक रास्ता ढूंढना होगा। हमें जो अपने हित में है, जो जैसे मैंने कहा भारत फर्स्ट, जो भारत का हित जो है इसको मन में रखते, वो मेरे लिए केंद्र बिंदु है। और मैं कहूँगा उसको केंद्र में रखते हुए हम कैसे पोजीशन लें। और ये देखिए, कूटनीति इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कभी आपने इज़राइल की बात की, अभी
अब जो इजराइल के खिलाफ जो हुआ अक्टूबर 7 वो आतंकवाद था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पता है कि कुछ यहाँ अभी भी पार्टियाँ हैं जो वो कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके कैलकुलेशन कुछ और हैं। उनको लगता है कि कुछ वोट बैंक बिगड़ जाएंगे यहाँ अगर वो कहेंगे, पर आतंकवाद है। और क्या होता है कि किसी देश के खिलाफ आतंकवाद, अगर वो आतंकवाद का शिकार बनता है तो उनको जो है वो तो ज़रूर उसका रिस्पॉन्स देंगे, तो वो भी स्वाभाविक है। पर इसमें हमें ये भी सोचना होगा कि ये होते हुए हमें सिविलियंस का ख्याल रखना होगा कि जो निर्दोष लोग जो हैं उनकी जान न जाए। और अंत में ये भी लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचना होगा, ये फ़लस्तीनी विषय जो है उस पर कहीं सोल्यूशन निकलना होगा। फ़लस्तीनियों को कहीं ना कहीं कुछ तो अपना देश का सोल्यूशन निकालना होगा। तो ये मुझे लगता है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, अगर हम बहुत एक किस्म से न्याय और मैं कहूँगा थोड़े डायरेक्टनेस के साथ अपनी बात आगे रखें, लोगों को लगे कि भाई ये जो हैं सचमुच इस पक्ष, माने जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो शांति के पक्ष में, हम स्थिरता के पक्ष में, तो हम जो हैं जितने बैलेंस्ड हों, और बैलेंस के लिए आपकी पोजीशन जो है बहुत उनको लगना चाहिए कि बहुत फेयर पोजीशन है, कि आप ये चालाकी नहीं कर रहे, पर आप सचमुच आपको लगता है इसमें कुछ एथिक्स है, इसमें कुछ मॉरल्स भी। तो मैं कुछ सवाल जो पहले आप लोगों ने भेजे हैं उसमें से करूँगा। विश्वजीत सावंत है तो खड़े रह जाइए अपनी जगह पे, अगर है तो। शायद वो कहीं बाहर हो गए, तो ऊपर भी हो गए। हाँ। तो उन्होंने इंडिया और कनाडा के बीच में अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आपकी टिप्पणी पूछी है। कनाडा के साथ आजकल आप सब जानते हैं कि हमारे रिश्ते जो हैं थोड़े बिगड़ गए हैं, और इसका कारण मैं कहूँगा कहीं कनाडा की राजनीति में है। कनाडा में क्या हुआ है कि क्योंकि लोकतंत्र, हम लोकतंत्र हैं, हम आजकल इलेक्शन का माहौल भी है, और हम जैसे लोग जो हैं हम उसकी जो प्लस पॉइंट, जो डेमोक्रेसी की प्लस पॉइंट, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी का कभी कभी मिसयूज़ भी हो सकता है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बदले आप आप हिंसा या आतंकवाद या अलगावाद का आप एक किस्म से तर्क बना रहे हैं, इसकी आप एडवोकेसी कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी फ्रीडम टू एडवोकेट वायलेंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी freedom to support separatism, terrorism in a foreign country. It cannot be. But क्या हुआ है कनाडा में कि जो एक खालिस्तानियों की ग्रुप है, और उन्होंने जो है कनाडा के फ्रीडम्स का दुरुपयोग किया है, अभी नहीं, सालों से कर रहे। पर जब कनाडा की सरकार जो है उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी होती है, तो ये भावनाएं जो हैं ये उनके लिए भी वोट बैंक है, ये तो इनको ये अकोमोडेट करते हैं। और इन लोगों ने आज उनके गतिविधियों के कारण आज मैं कहूँगा सचमुच ये रिश्ते बिगड़े हैं। और वहाँ जो हो रहा है कि हमारे राजदूत के खिलाफ हमारे जो बाकी डिप्लोमेट्स जो हैं उनको धमकाया जा रहा है। कभी हमारे किसी ने राजदूतावास के अंदर स्मोक बॉम्ब फेंका। हमारे जो डिप्लोमेट जो हैं कब एक समय में वो बाहर निकलने में उनको मुश्किल हो रही थी। और जो भारत के खिलाफ जो भी टेररिज्म यहाँ सपोर्ट करते थे उनको वहाँ शरण मिलता था। अब ये जो है हमें लगता है कि कनाडा के शासन जो है, कनाडा की राजनीति जो है, इसको एक बार और इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि
हमारा कहना है और हम लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, हमारे रिश्ते तो बिगड़ेंगे पर ये इसमें कनाडा का भी नुकसान होगा कि उन्होंने ऐसे लोगों को निवास करने की अनुमति दी है जो खुद मैं कहूँगा क्रिमिनल्स के अलावा और कोई मैं शब्द इनके बारे में प्रयोग नहीं कर सकता, कि ये जो हैं गैंग वॉरफेयर को कनाडा में भी ले गए। तो इनको बात समझ तो आनी चाहिए। अभी तक मैं कहूँगा राजनीतिक कारण के लिए सब लोग समझे नहीं हैं और कुछ लोग हैं जो इसका पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। थैंक यू। गौरव कसार शायद नहीं है। What is your next move regarding the dual citizenship? You have any comment about it? नहीं, अभी के लिए देखिए, जो ये आज जो है करीब 2 करोड़ भारत के नागरिक भारत के सीमा के बाहर रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, ड्यूटी के लिए जाते हैं और करीब मैं कहूँगा 1.25 करोड़ और लोग जो हैं वो दूसरे देशों के नागरिक बन चुके हैं। तो डुअल सिटीजनशिप की मांग जो है वो उस कैटेगरी से आती है, पर दूसरे कैटेगरी को भी कुछ इंटरेस्ट है इस विषय में। अब ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों से चल रहा है। अटल जी के सरकार के समय में हम लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइज़ निकाला था, जो हमें लगा कि उनकी जो असली जो मांगें जो हैं, जो उनका हित जो है, वो ओवरसीज सिटीजनशिप का फैसिलिटी देके वो उन जैसे उनको अगर घर में घर बनाना है, घर प्रॉपर्टी खरीदना है, बिजनेस चलाना है या भारत में, पर इसमें कुछ लिमिट्स हैं। जैसे उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता, जैसे उनका एग्रीकल्चरल लैंड लेने में एक प्रतिबंध है। तो ये डिबेट अभी भी चल रहा है, इस पे अभी कोई नई सोच नहीं है, पर ये डिबेट अभी जारी है। हम अभी कुछ सवाल ऑडियंस से लेंगे। हाँ, आप जोर से बोलिए। हाँ, खड़ा रहिए आप। हाँ, माइक है क्या? हाँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत नासिक नगरी में। मेरा नाम एडवोकेट SP कोठारी है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये सीधा हमारी आज की प्रगति पे से दिख रहा है कि आज नहीं तो आने वालों कल में हम विश्व में नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, और शायद यही कारण है कि कई तरह से प्रयत्न हो रहे हैं हमें उस पोजीशन पे जाने के लिए, रोकने के लिए ग्लोबली प्रयत्न होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कई फ्रेंडशिप कंट्रीज़ होती है, वो भी कई ऐसे प्रयत्न करते हैं कहीं ना कहीं हमारे को वहाँ पे काउंटर करने की। तो इस दिशा में आप ऐसे क्या 3 चैलेंजेस देखते हैं जो हमें आने वाले कल में अग्रसर होने के लिए रोक सके, और जब हम वो पोजीशन पर पहुंच जाए उसके बाद ऐसे क्या 3 या 4 चैलेंजेस हो सकते हैं हमको उस पोजीशन पर टिकाने के लिए? हम 2-3 सवाल एक साथ लेंगे, और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि एक सेंटेंस में सवाल पूछिए, बैकग्राउंड बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ मैडम, आप 10 साल पहले भारत पे कोई अगर डेमोक्रेसी पे अटैक होता था तो भारत की गवर्नमेंट उसकी कड़ी निंदा करते थे, लेकिन आजकल 10 साल से कड़ी एक्शन ली जाती है। तो ये जर्नी उसमें क्या बदलाव ये लाने में आपका क्या अनुभव है, वो अगर आप एक 2-3 वाक्यों में कह सके तो दैट विल बी द ग्रेट प्लेजर फॉर अस। थैंक यू सर। सर आप ये एक अच्छा हॅलो, मैं आता हूं, 1 मिनिट। आप सर माझा प्रश्न घ्या।
for Jaishankar sir. Sir, initially we had Nalanda and Takshashila here, sir. Hello. And that university we had, and that was only the knowledge. That time we don't have any arms. So all the invaders conquer India, and we become slave for almost 500, 600 years. So today we have Rishi Sunak as our person in governance in UK. So my question is, we are now today only exporting knowledge. So many people are there, so like citizen, but now they are becoming part of the governance also. So many countries. Question. Yeah, question is, are we going to conquer the world with our knowledge, wisdom, or through arms? Are we going to become a super economy or superpower? नहीं, I got it. So, Sir, एक और ले Sir, last question. My question is, क्या यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य खत्म हो चुका है? क्योंकि वर्ल्ड में तो कोई भी कंट्री किसी से भी वॉर कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर रहा है. तो वेदर इट्स वो संस्था का कोई उद्देश्य है? और एक छोटा सा सवाल है कि एस जयशंकर कब हंसते हैं? हाँ? जो पहला प्रश्न जो था कि हम नंबर 1 कब बनेंगे, इस पे देखिए, अगर इसके नापने के लिए अलग अलग मापदंड हैं, तो नॉर्मली जो लोग प्रयोग करते हैं वो इकोनॉमिक है. कहते हैं कि भाई जीडीपी, जैसे मेरे ख्याल से आप ही ने कहा, भगवत कराट जी ने, कि 10 साल पहले हम 10वें नंबर में थे जीडीपी के तुलना में, और आज हम 5वें नंबर में आ गए. तो ये लोगों का मानना है, और ये माने तुक्का नहीं है, बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं, बहुत बारीकी में लोग गए हैं, कि कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में हम नंबर 5 से नंबर 3 पे आएंगे. और जो अमृतकाल आज जो है, हम करीब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से थोड़े कम है. और ये उनका मानना है कि ये 4 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी जो है, ये अमृतकाल के समय में 30 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, और जो है 2070 तक हम जो हैं दुनिया के नंबर 2 इकोनॉमी होंगे, और करीब $52 ट्रिलियन का इकोनॉमी होंगे. ये गोल्डमैन सैक्स की स्टडी है, ये माना जाता है. अब मैं नहीं मानता कि अगर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं कि हम लोग, क्योंकि हम, आप सब जानते ना, हमें ओवरटेकिंग करने की तो आदत है, हाँ? तो हम कभी नंबर 2 पे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सामने कोई गाड़ी आगे है तो हम तो ज़रूर कहीं हमारे डीएनए में है कि आगे कैसे जाएं. तो मुझे लगता है कि हम पूरे देश में, क्योंकि आगे का अगर भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाएगी. और मुझे लगता है कि जिस दुनिया में हम अभी आज जो शुरुआत जो हुई है, उसमें टेक्नोलॉजी का इतना इम्पैक्ट होगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी जहां ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन माइंड का बहुत बड़ा योगदान होगा. तो ये जो मैं कहूँगा, ये चिप ड्रिवन, एआई ड्रिवन, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, ड्रोन, स्पेस, हम ऐसी एरा में अब हमें साफ दिखाई देता है कि ये है समय जो हमारे सामने है. तो मुझे लगता है कि हमारा पोटेंशियल और हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है. जितना हम एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इस पे हम बल दें, तो हमारी माने क्वांटिटेटिवली भी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, और क्वालिटी में भी, क्योंकि अगर अभी मैं सच कहूँ तो हम लोगों को जितना 1992 के बाद, जो रिफॉर्म एरा कहलाया जाता है, 1992 के बाद जितना मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए था, भारत ने नहीं किया.
तो आज जो है अगर आप देखें, जो नॉर्मली हमारे लेवल की इकोनॉमी जो है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का प्रतिशत जो है ज़्यादा होना चाहिए। अब मोदी जी आने के बाद ही मेक इन इंडिया शुरू हुआ है। हम लोग आज इंसेंटिव देते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हम जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित करते हैं। हमने क्रेडिट पॉलिसीज़ बनाई है, और आप उसी की बात कर रहे थे कि आज हम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री से लेके टॉप टेक्नोलॉजीज़ तक हम जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे और गहराई से स्थापित करें, उसके क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी, और जब तक भारत में टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हम अपने आप को दुनिया के लीडिंग पावर में गिन नहीं सकते। तो आज मैं लोगों को कहता हूँ, अगर आप पिछले 5-10 साल में भी पहले के 10 साल से तुलना करें, एक उदाहरण मैं देता हूँ। आप सबके पास फ़ोन है, हाथ में फ़ोन में 5G है। आप ही सोचिए, पहले 2G था, 3G था, 4G था। 2G हम लोगों ने यूरोप से इंपोर्ट किया, 3G 4G हमने चाइना से इंपोर्ट किया, 5G पहली बार जो है इंडिया, मेड इन इंडिया स्टैक। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम 5G आज, क्योंकि 5G की टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स है, हम 5G क्यों बना पाए जब हम 4G नहीं बना पाए? क्योंकि उस समय की सरकार, उस समय के प्रधानमंत्री को इंटरेस्ट नहीं था इसमें। अभी है, और मैं कह सकता हूँ 5G 6G ये बनेगा। और मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। कोविड के समय में क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटी सी ग्रुप थी कोविड के बारे में, मैं 5 मंत्री थे, उनमें से मैं एक था। हमारे यहाँ आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हम पे कितना प्रेशर था कि हम बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट करें। माने एक बहुत बड़ी इंपोर्ट लॉबी थी, और इंपोर्ट लॉबी का पहला काम ये था कि जो भारत में बन रहे वैक्सीन को बदनाम करो। तो मेड इन इंडिया को भी बदनाम किया, और जो इन्वेंट इन इंडिया वैक्सीन जो थी उसको भी बदनाम किया। और माने बदनाम जो है उसके पीछे एक कोई रणनीति थी। तो आप सोचिए, अगर हम इंपोर्ट करते वैक्सीन, एक तो उसकी कीमत कुछ और होती, मैं कहूँगा 10-20% लोग जो हैं उसको अफोर्ड कर पाते। दूसरा कि जिस संख्या में हमें चाहिए थी, जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए थी, वो हम कभी इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो जब भी हमने फोकस किया है, जान लगाई है, ऊपर से ये क्लियर डायरेक्शन आया है कि भाई किसी भी हालत में हमको करना होगा, हम एक्चुअली सफल रहे। दुनिया आज मानती है कि दुनिया चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग जो हुआ था उससे हैरान है कि इतना कॉम्प्लेक्स लैंडिंग, वो भी चंद्रमा के बहुत डिफ़िकल्ट साइड में हम लैंड किए, और उसकी अगर कॉस्ट देखें तो हम बहुत कॉम्पिटिटिव। तो आज मैं मानता हूं कि पिछले 5-10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें, हम में वो क्षमता है, हम में वो टैलेंट है। हमें लीडरशिप चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें पूरे देश में एक नेशनल कमिटमेंट चाहिए आगे ले जाने के लिए। और ये जो है, जो आपका ये भी था कि अगर हम नंबर 1, नंबर 2 जो भी है, जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे हमारा व्यवहार क्या होगा। मैं कहूँगा इसीलिए हम आज से हमने शुरू किया है। हम आज भी विश्व बंधु हैं, तब भी विश्व बंधु रहेंगे। जो दूसरा सवाल था आपका कि 10 साल में क्या बदला है। देखिए, पिछले 10 साल में एक बड़ा चेंज तो आप सब लोग जानते हैं, उसका नाम मोदी है। और मोदी मेरे लिए एक किस्म से कॉन्सेप्ट है। प्रधानमंत्री का नाम तो है जरूर, पर अगर आप जाकर मोदी जी की बात करें ना, तुरंत लोग जो हैं अलग अलग क्वालिटी जोड़ लेते हैं उसके साथ। मोदी का मतलब है आत्मविश्वास, मोदी का मतलब है हिम्मत। तो उनकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ जो हैं आज पूरे देश में, सिस्टम में, मैं कहूँगा, देखिए मैं ब्यूरोक्रेसी का आदमी था,
आज वही ब्यूरोक्रेसी, उनकी परफॉर्मेंस देखी कितना चेंज हुआ। मैं अपनी डिपार्टमेंट की कभी बात करता हूँ कि पहले पासपोर्ट का कैसे था, आज देखिए पासपोर्ट का कैसे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उत्तरी सीमा में चाइना ने दबाव डालने की कोशिश की, तो कोविड के समय में हमने काउंटर डिप्लॉय किया, इतनी भारी संख्या में हमने अपनी फौज भेजी है। आज भी वो लोग वहाँ हैं और चाइना का सामना कर, वो भी एक फर्क। या मैं एक उदाहरण और दूंगा कि आप जानते हैं कि हम 4 देश, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, हमारा एक ग्रुप है, क्वाड कहलाया जाता है। 2007 में यही 4 देश, उनका एक प्रयास था वही ग्रुप बनाने का। उस समय चाइना का दबाव था, चारों ने मैदान छोड़ दिया। इस बार जो है 2017 में दूसरी बार जब ये ग्रुप बना, चाइना से फिर से भी दबाव था, किसी ने छोड़ा नहीं मैदान। तो लीडरशिप जो है, देखिए लीडरशिप एक बहुत एक्स फैक्टर होता है किसी के देश के इतिहास में। अच्छा लीडर मिल जाए तो भगवान की कृपा है। और जो आपका जो है कि नालंदा में मैं देखिए आपसे एक विषय में मैं एग्रीमेंट में नहीं हूँ। ये नहीं था कि हमारे पास आर्म्स नहीं थे, हमारे बीच में उस समय विवाद था, ये हमारी कमज़ोरी थी। बाहर के लोग आए, शस्त्र थे हमारे पास, सहमति नहीं थी हमारे पास, यूनिटी नहीं थी हमारे पास। आज भी वही उसका सबक है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो पहले की गलती ना करें। जितना हम लोग जो हम कहते हैं, इसीलिए नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इसका अब बहुत महत्व है। अगर एक बार हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कास्ट, रिलीजन जो भी है, जितना बीच में विवाद हम खुद खड़ा करेंगे ना, हम दूसरे लोगों को एक टारगेट दे रहे। तो हमें अगर इतिहास से कुछ सीखना है कि एक सचमुच नेशनल यूनिटी की माने इतनी बड़ी वैल्यू है कि मेरे लिए तो वो सर्वप्रथम। और इस समय भी अगर आप देश में जो डिबेट जो हो रहा है, इसका एक पहलू जो है वो है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया इज़ अ नेगोशिएशन। फॉर मी इंडिया इज़ नॉट अ नेगोशिएशन, इंडिया इज़ अ बिलीफ, इंडिया इज़ अ कन्विक्शन, इंडिया इज़ अ सिविलाइजेशन। जो आखिर वाला सवाल जो है यूएनएससी का, आप जानते हैं कि करीब 60 साल पहले, 70 साल पहले, उस समय एक प्रयास हुआ था कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य, स्थायी सदस्य बनाए। उस समय के प्रधानमंत्री का कहना था कि पहले हमें चीन को बनाना है, उसके बाद हम भारत की बारी देखेंगे। आप ये जयशंकर नहीं कर रहे, ये पंडित नेहरू का एक लेटर है जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को लिखा था, ये पब्लिश्ड रिकॉर्ड है। अब वो ठीक है, उस समय उनकी सोच वो थी। उसके बाद वही चीन जिसका हमने समर्थन किया, जिसकी हमने इतनी वकालत की कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ उस समय बिगड़ गए, वही चीन जो है आज आपको रोकने की प्रयास कर रहे। पर मैं मानता हूं कि आज जो है दुनिया में एक मूड बन चुका है कि लोग जानते हैं कि ये भारत 5वें नंबर पे है, इकोनॉमिकली तीसरे में होगा, पॉपुलेशन में नंबर 1 है। हमारा सामर्थ्य देखें, हमारा योगदान देखें कि हम अलग अलग स्थितियों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हमारी जैसे मैंने कहा नौसेना रेड सी में है, हम इतना कुछ करते हैं दुनिया के लिए।
और मैं ये आपको कह सकता हूँ, अगर सचमुच जो करीब 193 देश हैं, सदस्य हैं यूएन के, अगर वहाँ सचमुच वोट होगा तो हम बहुत बड़ी बहुमत से हम जीतेंगे, मुझे कोई इसमें संकोच नहीं। तो चुनौती है कि वो वोट कैसे करवाएं। तो ये अब आजकल वो वोट इसको आगे ले जाने का जो दबाव जो है ये बढ़ रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं इसका समाधान निकलेगा। एक सवाल मैं पूछ लूँ। 10 साल में जो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है वो है अपने जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है उसमें इजराइल के साथ हुआ, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया मैं मानता हूँ, परंतु यूएई, सऊदी अरेबिया के साथ जो रिश्ते अपने बने हैं वो एक बात। दूसरा पार्ट है उसी क्वेश्चन का कि अगर आप देशों की कुछ कैटेगरी करें कि कुछ उस देशों के साथ रिश्ते कम्युनिकेट करना, रिश्ते बनाना आसान है, कुछ लोगों के साथ डिफ़िकल्ट है, तो उसमें पाकिस्तान कहाँ रहता है? जो आपका पहला सवाल जो है, पिछले 10 साल में ज़रूर खासकर खाड़ी के देशों के साथ हमारे रिश्ते जो हैं बहुत ही घनिष्ठ, माने बहुत इतने आगे बढ़ चुके हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता। और इसका अगर कोई प्रमाण है, कोई सचमुच एग्जाम्पल, उदाहरण है, वो है कि उनमें से एक देश ने हमें परमिशन दिया, अनुमति दी कि हम जो हैं वहाँ एक बहुत बड़ी मंदिर स्थापित की। क्योंकि आप कल्चरल डिप्लोमेसी में देखिए, ये एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है और ये एक रेस्पेक्ट का जेस्चर होता है कि उनको लगता है कि भारत की पब्लिक और जो हमारी जो वहाँ समुदाय जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी, ये सुविधा नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी एक किस्म से हाँ नहीं सोल भी नहीं, माने उनके लिए एक ऑनर है। हाँ हाँ, कि वो जो है वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना किया है, आपकी आज भी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है, पर ये भी मानते हैं कि ये उनको पता है कि ये जेस्चर जो है ये भारत में लोग इसको कैसे देखेंगे, उनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज अगर आप देखें, एक समय था जहाँ ठीक है हम तेल लेते थे, हमारी रोजगारी के कारण लोग जाते थे वहाँ, पर आप हैरान होंगे, नरेंद्र मोदी वहाँ गए, प्रधान यूएई की बात कर रहा हूँ, 2015 में गए। आप हैरान होंगे, उसके पहले इंदिरा गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गया। आप सोचिए, बस समुंदर के उस तट पर है, इतना दूर भी नहीं। तो जो लोग बात करते हैं कि हमारे रिश्ते उस दुनिया के साथ इतने अच्छे थे, हकीकत में नहीं थे, उनकी उतनी रिस्पेक्ट होती नहीं थी और ना वो खुद इंटरेस्ट लेते थे। ये तो दिखावा था पॉलिटिकली, वहाँ कुछ नहीं था। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आज अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम इसको आगे ले जाने की हमारी आशा है, अपेक्षा है, कि हमारे इतिहास में एक समय था जहाँ भारत से यूरोप एक ट्रेड कॉरिडोर था, जो ये अरेबियन देश, खाड़ी होते, सऊदी अरेबिया होते, माल जो है वहाँ से यूरोप से भारत आता था, हम वहाँ ले जाते थे। अब अलग अलग कारण थे, पिछले 500-600 साल में ये बंद हो गया आना। आज हमारा एक प्रस्ताव है जो हम सब लोग इस पे सहमति बना चुके हैं कि आगे वाले दिनों में हम एक नया कॉरिडोर बनाएंगे जिसको आईमेक कॉरिडोर कहते हैं। ये भारत से शुरू होगा और वो यूरोप तक जाएगा और ये यूएई, सऊदी अरेबिया होते होते वहाँ जाएगा। आपका दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर नहीं,
कभी कभी है कि हम उनको समझाते हैं कि देखिए आपके हित में भी है हमारे, क्योंकि अभी उनकी आर्थिक स्थिति देखिए आप, पर कभी सिचुएशन कुछ और होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि उरी और बालाकोट भी एक किस्म से कम्युनिकेशन ही था। आप जय श्री राम। Professor Varsha Bhalerao, Nasik is actually one of the most, like it's an agricultural based city. It contributes nearly 13.5% of the Maharashtra's actual agricultural GDP. And it has a potential of actually bringing up the export economy from actually what exists to nearly $50.12 billion. And the best decision that has happened in the last 10 days is that the export on onions has been lifted by our Prime Minister Narendra Ji Modi and your ministry also. My question is from behalf of all the Nasikkars that how can we use this opportunity to leverage and stimulate our economic growth of Nasik? Second thing, how can we, reduce post-harvest losses and increase the export quality of the produces of Nasik? Thank you. No, they are very good questions because they are a logical follow-up to what I was just talking. I'll tell you why. I spoke about this corridor which we are building with Saudi Arabia. Apart from that, we have another group called I2U2. I2 is India and Israel. U2 is US and UAE. Now, this IMEC corridor and I2U2 both have food security as a very important subject. And food security, you see, this whole region, the Middle East, the Gulf, Middle East, they are dependent on their food on other countries. If we become a regular provider of food supplies, this is a very big business. Now, we are getting them, our priority is actually to work with these countries and get them to invest in food parks. So the agriculture business would be here, but we will be doing value add and giving the finished products, because unke yahan, if you give them raw material or semi-finished, they will not know how to handle it. So we actually think that the west coast of India, particularly Maharashtra has a tremendous potential today to actually become a food basket, not only for India, but also for export out of India. And this is something which for us, I would say in the coming term, if I were to look ahead, because मोदी जी ने हम सब लोगों को होमवर्क दे दिया, पहले से होमवर्क दे दिया, वो रिजल्ट अभी नहीं आए पर होमवर्क दे दिया, हाँ, कि आप फर्स्ट 100 डेज का जो प्रस्ताव आप प्रोजेक्ट्स तैयार करिए, बट डेफिनेटली हाउ टू मेक this region, how to make this a very important food supplier globally is one thing. Secondly, your question, how do we improve, how do we do the value add? See, there is many things today we can do ourselves, but many things you learn also by working with other people. And I give you a very good example which everybody in this region knows. Look at how much today drip irrigation has taken off. The drip irrigation was a practice we first saw in Israel. Israeli companies became our partners. Then today, we think of it very naturally, pani itni bachat ho jati drip irrigation mein. But there are different technologies today on the food side. So we definitely are very confident as our logistics infrastructure improves, business climate improves, technology improves, our relationship. Because one thing with Vishwa Bandhu has many friends. Vishwa Bandhu माने दुनिया आप पे भरोसा करती है माने पैसे लगाने के लिए तैयार है. I mean, that is ultimate bharosa. So I really think there is a lot of possibility in the coming period. एक मिनट, just a minute.
एक मिनिट मॅडम I will come to you, please. Yeah, the world is a global village. You know, it is so easy to go to Europe because you have one Schengen visa. How can India start a world visa system where we can really become so easy, all our businessmen, all our tourists can really have it? आप पूछ सकते हैं वैसे. Sir, my question to you is about the recent developments and protests which has happened in POK. That is one. How it is going to handled by India? Will there be any intervention from our side? Number one. Number two, is there any possibility the way in which Balochistan issues is getting heated up? What is going to be our international stand on that? There are both the things are related to our nearby country. मैडम आप just a minute, hold on. हाँ, आप Yes, sir. हाँ. हाँ. हेलो. हाय माइक दे दीजिएगा प्लीज. माझी विनंती अशी आहे. एक चालू कर. हे बघा, सर्वांना प्रश्न विचारायचे आहेत. विजय सर सांगतील त्यांनीच फक्त माईक द्यावा. स्वयंसेवकांना विनंती आहे की माईक फक्त सरांनी सांगितलेल्यांनाच द्या. परस्पर माईक देऊ नका. नाही बंद आहे. तुम्ही सांगा, ऐकू येत आहे. एक मिनिट. Can we call our north border as Tibetan border instead of China border? Very simple but useful question. Is it Tibet border instead of China border? हाँ, sorry. हाँ, एक क्वेश्चन और. यस मैडम, आप पूछ लीजिए वैसे. एक मिनट रुक जाइए. Sir, in many of your interviews, you have often talked about the first world countries, especially the West. So how has India's relationship with these countries evolved? Also, what is India's role in the representation of the global South? Okay, one more question. एक और लास्ट ईयर वो प्लीज. हाँ. What do you think world's perspective towards India today? Thank you. Let me do deal. Sir, with I am. this. Sir, एक मिनट. sir, one. Let me answer these first. So first question जो आपका था about visa. See, the number of countries with whom we have visa-free arrangements is slowly growing. But the challenge often is that our population is quite large. Many of these countries are quite small. So in many cases, they have some hesitation. So इसका एक बीच का रास्ता भी होता है that many of them, we are also telling them shift to e-visa. E-visa is much easier. आपको घर में बैठे बैठे you apply online, you send your passport. But right now, we have two problems. Actually, we are finding many of the Western countries particularly, उनके यहाँ visa देने में बहुत समय लगता है. Okay. Now, my problem is this, मैं अपनी efficiency तो मैं improve कर सकता हूँ, मैं दूसरों की करना not so easy. So we keep telling them, saying, look, we can try and help you in some way. आप बताइए, how do we shrink the time? Because it is a matter of concern for us, especially every summer. You know, summer में लोग tourism के लिए भी जाना चाहते हैं, students भी जाते हैं बाहर, business वाले जाते हैं. So this थोड़ी सी tension होती है इस समय. But I would say, as you know, also there are issues about the passport. Now we are hoping
in the coming year to introduce digital passport, कि passport में chip होगा, तो उसमें फिर आपकी identity जो है that becomes more secure. So I think these are all steps which will go in the direction of more easy travel. How to help Indians travel more easily. This is a very big goal of the Modi government. And it starts by making it easier to get passport. That if you see, I think in Maharashtra, before Modi ji came, totally in Maharashtra there were 5 or 6, 8 centers. Total Maharashtra, today there are 48 centers for applying for passports. So that is where it begins. But there are many steps that we have to do. The second one, jo POK ka jo hai, I mean, I think in one way I had referred to it earlier also. See, look, our own senses, people in POK are seeing the positive changes across the line of control. And they are asking themselves, hey, if things are like that, you know, why are we suffering and why are we accepting, you know, this kind of mistreatment? So, कहीं ना कहीं इसका असर उस पर पड़ रहा है. I don't think there is any doubt about it. So we'll have to see really where this goes. Now, which other parts of, you know, which part of Pakistan has, because POK is a different category, because eventually POK is India, it will come back to India. I don't think we should ever have any doubt about it. But on what is Pakistan, they have a lot of other problems. You know, Balochistan may be here, other parts of Pakistan are also having. We have to see, I mean, they have very severe economic problems also right now. But whether they do the right reforms and whether they take the right policies, because this policy of continuously going against India, today that is what has brought Pakistan down to where it has come. So we'll have to see whether there is any change in thinking there. जो आपका सवाल जो था about currency, you know, definitely what will happen is as the economy strengthens, as the economy grows, it has currency implications, but not always direct, because sometimes, you know, in last few months, there is a big change in the value of the Japanese currency. Japanese economy has not undergone a big change, but the value of the currency has undergone a big change. So currency is a very complex matter, but it is also dependent not only on the size of the economy, it is dependent also on how sound, how disciplined that economy is. Today, for example, if our inflation is under control, because we've had today very, I would say, our finance policies in the last 10 years, Prime Minister Modi inherited an economy in a very bad situation. You know, people don't appreciate how much he has done actually today to bring down debt, to bring down inflation, to restore our financial credibility in the world. So all these factors. Right now, if you actually see, many currencies in the last 2 years have devalued very much against the dollar. We are among the currencies which have held very steady. And I think that is something which we should recognize. On the border issue, see, border is a border. What we call it, I think, is something which you are welcome to debate. I am more concerned about defending that border, making sure that that infrastructure is there. Because one of our biggest problems in the China border is actually there was no preparation. You know, till 2014, on the China border, budget to develop that border was 3,500 crores. Under Modi ji, that is today almost touching 15,000 crores. You will read up in the newspapers, you know, every week, some new project, some tunnel, some road, you know, something, some airfield. There are very big changes happening out there, because those changes are necessary if our army is to go there and stay there and defend that border. That what happened before actually was a great shape, that we made it very difficult for our own military to defend our own border by not providing the infrastructure out there. On the West
and global south. You see, here is a challenge for us with the West. Most of our trade is with Western countries, okay? Lot of our technology collaborations are with Western countries. Lot of the foreign investment coming in are Western countries. Many of our students who study abroad are in Western countries. Many people who go to tourism go to Western countries. We have a very good relationship with Western countries, and it's actually to our benefit. But there is also an attitude in Western countries which is from the earlier period, where they feel they should give certificates and judgment to other people. Today, slowly they are growing out of it. I think the governments of Western countries do it less and less, but the media there and the think tanks and the intellectuals there, they don't understand today, or maybe the habit is too deep. They don't understand the reality is today very different, and that people will not accept those anymore. That if you pass comments on me, I will also pass comments on you. So we have to today make them slowly change, and change. This kind of change doesn't happen so easily. Where the global south is concerned, as I said, whether it was vaccines, whether it was during our G20 presidency, that global south feels that India actually speaks for them, that they will do things for them. So they are our friends in many ways. And I think when we look at Vishwa Bandhu, we talked about UN. See, when we become UN Security Council member, we will need 2/3 of the countries, at least, I would expect much more, to actually support us in the UN. Every year in the UN, we stand for many elections. We get 70-80% support, and we get it because Global South is with us. So they have a lot of trust, and we are seen in many ways as the example for the Global South. The last question, the world's perspective. How does the world see us? I think today, actually, the world sees us with more respect. World sees a country which has recovered from the COVID. When COVID started in January 2020, there was actually a meeting, G20 की मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी. उस समय G20 के नेता सब लोग स्क्रीन पे थे, मैं मोदी जी के साथ था उस समय. जो ब्रीफिंग जो दी गई थी, ब्रीफिंग ये था कि ये महामारी को कोई रोक नहीं पाएगा, ये जरूर पूरे दुनिया में फैलेगी, पर अगर हमें किसी देश के बारे में चिंता करनी चाहिए तो वो देश जो है भारत है, क्योंकि भारत जो है इसको मैनेज नहीं कर पाएगा. ये दुनिया की समझ थी उस टाइम, जनवरी 2020. अब जो देश जो है जिसके बारे में दुनिया चिंतित थी, वो देश एवेंचुअली 100 देशों को वैक्सीन दे पाया, 150 देशों को दवाई दे पाया. हम जो है मास्क हो, वेंटिलेटर हो, पीपीई हो, हम 6 महीने के अंदर हमने दिखाया कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो डिलीवर कर सकता है. तो आज जो है मैं कहूँगा कोविड के अनुभव से, अगर आप, क्योंकि दुनिया जो है अल्टीमेटली सब लोग आंकड़े के हिसाब से जाते हैं, ये पूरे देश में, पूरे दुनिया में ये जानकारी है कि भारत का इकोनॉमी जो है हमारी ग्रोथ रेट जो है 7% है. कोई और बड़ी इकोनॉमी उस लेवल की नहीं है आज. तो अगर आप इकोनॉमिकली देखें, कोविड के अनुभव से देखें, जो जिम्मेदारियां हम निभाते हैं, जैसे मैंने कहा रेड सी में हमने नौसेना भेजा है, या जो हम अपने लोगों के लिए करते हैं, जो हमारा जो यूक्रेन में जो ऑपरेशन हुआ, हमारे यहाँ तो मैं मानता हूँ कि लोग प्रशंसा जरूर करें, पर दुनिया में भी बहुत रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि हमारे बच्चों के अलावा जो उनके साथ जो उनके दोस्त थे, हम दूसरे लोगों को भी बाहर यूक्रेन से बाहर निकाल के लाए थे. तो ये, और हमारा जो टेक्नोलॉजी का इमेज जो है, चंद्रयान का पूरे दुनिया में प्रभाव है, 5G का. आज जो है अगर हम इनोवेशन की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, यूनिकॉर्न्स की बात करें, तो लोगों को लगता है कि भाई भारत का कुछ यहाँ कुछ रेपुटेशन है. और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा, खासकर जो सरकारें जो हैं, उनके लिए नंबर 1 इशू है कि हमने डिजिटल मीडियम के साथ हमने गवर्नेंस को कितना सुधारा है. कि वो ज़माना जहाँ 85% लीकेज होता था, कि आज जो है बड़े बड़े योजनाएं, माने राशन, मुफ्त राशन जो है 80 करोड़ों को मिलता है. घर जो है आवास योजना
आवास योजना के लाभार्थी जो हैं 4 करोड़, अगर मुद्रा के लाभार्थी जो हैं 40 करोड़। अब ये लोन देना, घर देना, हेल्थ एक्सेस देना, राशन देना, अगर ये सब चीज़ जो है बिना भ्रष्टाचार के सिस्टमैटिकली टारगेट तरीके से हों, तो मैं कह सकता हूँ ये सबसे बड़ी इम्पैक्ट जो है दुनिया के सोच में होती है भारत के बारे में। मित्रों, आज हे प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम आपण संध्याकाळपर्यंतही चालू ठेवू शकतो, परंतु डॉक्टर जयशंकरजींना आता आणखीन एक कार्यक्रम इथे नाशिककरांनीच ठेवला आहे, तो करून त्यांना दिल्लीला परत जायचं आहे आणि संध्याकाळी त्यांचा दिल्लीत एक कार्यक्रम आहे. सो त्यांच्या सगळ्या व्यस्त त्यांच्या शेड्यूलमध्ये आपण सर्वांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. सो त्यांच्या वतीने आणि माझ्या वतीने आय थँक एव्हरी वन ऑफ यू. और